quality parameters, ठीक है. So the second set of transaction is made on the quality front, wherein this record is maintained. ठीक है, clear? Okay. Now this material, any either the material is moved to stock or it is moved to rejection. And what moves to your accounts? यहाँ तो हमने एक piece of paper move किया था ना, you just moved a piece of paper, invoice, quality record, or QCR. QCR moves to accounts, quality control report. ठीक है, clear हो गया? So here you have two things, one is raw material, the other is rejection. Okay, which stock is usable? This is usable. This has to be returned back or can be treated as a scrap depending upon the policy of the particular company. Okay, so now what accounts does is it reconciles the invoice with QCR, and a third transaction is made at this point of time, which is known as a purchase record. ठीक है, so what purchase record says is the MRN had X numbers, the QC has selected Y numbers, and what has to be paid off is taken into the accounts part. ठीक है, clear हो गया यहाँ तक? कोई problem? What a purchase record will have? A purchase record will have a valid date, bill number, MRN number, party, product, accepted quantity, rate, amount, and statutory information. हाँ जी, परचेज रिकॉर्डिंग हो गई, गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, जहां पहुंचने थे वहां पहुंच गए. एनीथिंग एल्स? आगे क्या चलेगा? पता नहीं. पेमेंट्स की बात बाद में करेंगे, पहले हम मटेरियल के साथ घूम ले, मनी के साथ बाद में घूमेंगे. मनी के साथ सबसे पहले क्यों घूमना? पहले मटेरियल के साथ तो घूम लेना. अभी देयर आर सो मेनी रीजन्स जहां मटेरियल मूवमेंट है. ठीक है, पेमेंट्स की बात हम बाद में करेंगे. यहां तक ओके है? Are you able to see the accounts department? Are you able to see the QC? Okay. Now अब ये जो premises है, इतनी बड़ी premises है, there is some area which is designated as WIP, work in progress. ठीक है? So you need to issue some things to
that work in progress wherein your store department comes in, क्योंकि ये क्या है डिपार्टमेंट आपका, this is your store records, where your store department comes in and he is basically responsible for sending material and receiving the material back. Responsible for sending the material and receiving the material back. ठीक है? So what a store record will have? This is number 4, and number 4 will have a date, item or product, what is the opening, what is the inwards, outwards, and closing balance. ठीक है? So this is the responsibility of this store record to maintain what is coming in, what is going out. ठीक है? What it is doing is it is getting inward from QC and it is making outward to WIP. Okay? Now this WIP can be a varied set. Varied set क्या मतलब? यहाँ पे वुलन्स भी बन सकते हैं, शूज बन सकते हैं, चॉकलेट्स बन सकती हैं, ठीक है? This can be anything. So this is a WIP. हम इसकी डिटेल्स में बाद में जाएंगे. We just think that this is the area where something has been manufactured and something is coming out of it as a finished goods. So there is something which is coming out to this finished goods store, right? So another recording at number 5 and it will have the same contents, क्योंकि store है ना, यहाँ भी store records maintain हो रहे हैं, वहाँ भी store records maintain हो रहे हैं, so one and the same thing, right? And finally when finished goods are made, जब आपके ये finished goods आ गए, then they have to be sold. So again one piece of paper, that is invoice, and gate pass. Very good. One piece of paper, that is gate pass, clubbed together and out of the unit. एक बड़ा broader aspect है ये industrial working का, wherein we have certain things where we need to keep on. मैंने 2 स्टार्स लगाए हैं यहाँ पे. भाई ये एक जनरल प्रोसेस है. We wanted कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, they should come on the same platform. They should know कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं. मेरे ख्याल से अब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे आ गए हैं जहां वी नो कि what things are maintained in an accounting system, right? कोई ऐसा रह गया जिसको नहीं समझ में आया अभी तक? बहुत सिंपल तरीके से आई सपोज की समझाया इसको. दिस इज ऑल व्हिच इज मेंटेन्ड. ठीक है? नाउ दिस इज जस्ट अ फ्लो. दिस इज जस्ट अ फ्लो. बट कहीं पर भी वी नेवर एनकाउंटर्ड विद स्टैंडर्ड्स, और हम कहीं पर भी MIS से तो हमारा कहीं भी वास्ता नहीं पड़ा. अभी तक तो हम किस पे बात कर रहे थे? हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग पे बात कर रहे हैं एंड व्हाट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है? सो एनीवेयर हमने ये नहीं देखा कि कहीं पर भी कोई MIS बनती है या कुछ हो रहा है, वो हमारे सामने अभी तक नहीं आया. स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो हमारे सामने नहीं आए. सो वी हैव जस्ट कम टू लेटर्स अप. ट्रांजैक्शंस तक हम ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड्स, राइट? हाँ जी, इंडस्ट्रियल पिक्चर क्लियर है? सो शुड वी मूव टू
some inner departments of this? चलिए, Excuse me, हाँ जी, can I ask a question? sure. According to me, store department is that department where the all the products that have been approved by the quality department is there. That is the thing. This is for the That's what we are doing, huh? We are sending the materials after a quality check to store. to the manufacturing department. No, we are not sending it directly to WIP. We are sending it to store. Then store is sending it to WIP. Basically, store department is the approval where all the products that have been coming from the outside is Store is a department where every material which is that has been approved. and even disapproved. Because we have a rejection store which also comes under the store department. Okay. ठीक है? So दोनों चाहिए हमारे को. We have a raw material store, we have a rejection store, we have a finished goods store. It depends on the architecture of the company. If it is a big company, they have different stores for different things. Like they will be having a store for raw material, they will be having a store for packing material, for consumable goods, for semi-finished goods, for finished goods, depending upon the size of the company. छोटी कंपनी है तो वहां पर हो सकता है कि एक ही स्टोर हो, उसी में ही रॉ मटेरियल्स हो, उसी में ही पैकिंग मटेरियल हो, उसी में ही सब कुछ, ठीक है? बट विल मूव इनटू दिस, हम इन सभी सेक्शंस में विल पीप इनटू ऑल दीस सेक्शंस, ठीक है? अभी तो एक ब्रॉडर हमने आउटलुक लिया है सो दैट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हैं वो भी एक लेवल पे आ जाएं, ठीक है? नाउ विल पीप इनटू ऑल दीस सेक्शन. हाँ जी स्टोर्स में हमारी इनपुट आ गई है जी, तो अगर हमें कैसे पता चलेगा जैसे हमने फिनिशिंग वुड बनानी है तो जैसे हमने 100 kg की बनानी है, कोई भी चॉकलेट लगा लो, शूज लगा लो, तो हमें इसका भी कोई अकाउंट होगा ना कितनी हमारे पास इनपुट आ रही है अंदर, कितना उसकी गुड्स बननी चाहिए, इसका भी थोड़ा सा मैंने इसीलिए यहाँ पर है ना ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई है इसीलिए बनाई है. विल कम टू दिस WIP. अभी आपके सवाल का जवाब पे आते हैं, ठीक है? अभी तो बनाना तो दूर की बात है, अभी तो हमने सिर्फ यही समझा है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं ब्रॉडली जिनमें हमारे को विजिट करना है एंड विल बी विजिटिंग ऑल दीज सेक्शंस, ठीक है? वन थिंग, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी गो टू एन इंडस्ट्रियल विजिट, ठीक है? किसी ना किसी ने कभी ना कभी की होगी इंडस्ट्रियल विजिट, की है कभी? कभी स्कूल में, कॉलेज में? नेवर गॉन टू. ओके. इंडस्ट्रियल विजिट में क्या होता है, एवरी टाइम यू गो फॉर एन इंडस्ट्रियल विजिट वो आपको दिखाते हैं हाउ अ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है? लाइक इफ यू गो टू अ साइकिल फैक्ट्री, हीरो साइकिल्स में चले जाएं तो दे विल शो यू हाउ साइकिल्स आर फॉर्म्ड. वो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिखाएंगे, वो आपको रिम मेकिंग दिखाएंगे, असेंबलिंग पॉइंट दिखाएंगे, पैकिंग पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है? All these points are part of WIP. Basically what they are showing is how things are manufactured. But हमारा स्कोप क्या है? हमारा स्कोप है things are manufactured, but what are the other aspects which are affected when these things are being manufactured? जब वो चल रहा है प्रोसेस तो what is our scope? हमारा स्कोप क्या है? ठीक है ना? Where does an accounts person stand? Where does a management person stands? वो कहां पर स्टैंड करता है? What he needs to check? उसको क्या चेक करना चाहिए, ठीक है? तो हमारा एस्पेक्ट ये है, हमारा एस्पेक्ट ये नहीं है कि ये कैसे बन रहा है. We should have the knowledge if something is being formed, what are the factors, किन चीजों पे वो डिपेंड करता है, what the things are to be checked, ठीक? अब जब मुझे बताइए, अगर मुझे पता ही नहीं कि there is a quality control over there, तो मेरे लिए तो ठीक है ना, मटेरियल आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बन के ही निकल रहा है ना, ठीक? बट एज फार एज एक MIS, if we are talking about management, तो management means we should at least have an idea of all the aspects of the industrial thing, ठीक है? ओके, तो ये हमारी इंडस्ट्री थी, इसमें हम लोग घूमे और घूम करके हम बाहर आ गए. लेकिन एग्जैक्टली अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो इट्स जस्ट अ समराइज्ड प्रोसेस एंड दिस मे बी सुटेबल टू सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. क्यों? बिकॉज मटेरियल मूवमेंट ही तो हो रही है ना. हर इंडस्ट्री में WIP होगा, हर इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल होगा, हर इंडस्ट्री में फिनिश गुड स्टोर होगा, सब में होगा.
तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक, लेट्स मूव टू अ बिगर एस्पेक्ट. बिगर एस्पेक्ट मतलब वी मूव फ्रॉम अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू अ मीडियम एंटरप्राइज. लार्ज की बात नहीं करते हम, सीधा मीडियम एंटरप्राइज पे आते हैं. क्यों सर? पर ऐसा सही नहीं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, फ्रॉम दिस स्मॉल स्केल वी मूव टू मीडियम एंटरप्राइज. और रादर अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इसको एसएमई बोलते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. ठीक है, चलिए मीडियम एंटरप्राइज की बात आते हैं. ये इसकी पिक्चर क्लियर है? रब कर दें तो भी दिखाई देगी, रब कर दें तो भी दिखाई देगी. ओके, दैट्स गुड. नहीं, पिक्चर क्लियर तभी होनी चाहिए कि रब करने के बाद भी दिखे. ठीक है, so this was a small scale industry. Small scale industries can come into two variants. One is a Hanji. Sir, I just wanted to ask at what level we start differentiating the industry into small scale and medium scale? There are different parameters. अगर हम industrialization के process पे जाएं तो turnover is one parameter. That what is the turnover of that industry. Second, जो basically जो government सोचती है, that is on the turnover basis. That if it has a certain turnover, it's a small scale industry. If it has a certain turnover, it is a large scale industry. ठीक है, turnover means the amount of sales it makes in a financial year, right? Second parameter जो है, that is the area of operations. It is the area of operations that differentiates into a small scale or a large scale industry. Like if we talk about a chemical industry has a huge area of operation. तो उसकी turnover चाहे कम हो, but it is still a large scale industry because it has so many operations to perform. ठीक है, तो दोनों क्राइटेरिया हैं. गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स जस्ट द टर्नओवर. तो टर्नओवर के बेसिस के ऊपर वो स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल बनाई जाती है. बट अगर हम MIS पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि व्हाट इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो हमारे हिसाब से इट इज द एरिया ऑफ ऑपरेशंस. जितने एरिया ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे उतना ही हमारा इंडस्ट्री साइज बढ़ जाएगा. ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को आप ऐसे कोट नहीं कर सकते कि इट हैज अ बिगर एरिया. लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बहुत फैली हुई है, तो इसका मतलब वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है. इट इज नॉट. ठीक है, हो सकता है उसकी टर्नओवर से इट माइट नॉट बी मोर देन 40 करोड़. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एरिया के हिसाब से. अब अगर आपको से यू वांट टू मेक पाइप्स, तो पाइप बनाने के लिए आपको छोटी जगह नहीं चाहिए. यू नीड अ बिग स्पेस. बट इफ दैट पाइप मैन्युफैक्चरर इज जस्ट सेलिंग फॉर 20 करोड़, इट्स नॉट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो एरिया के हिसाब से नहीं चलेंगे. इट्स अकॉर्डिंग टू योर टर्नओवर एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर इनटू इट. ठीक है, ओके. अब हम थोड़े से ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आते हैं. यहां तो हमने एक इंडस्ट्रियल वर्किंग देखी. In a medium scale industry there are certain more parameters that come into existence. वो parameters क्या हैं? They are hybrid parameters. Hybrid इसलिए क्योंकि one parameter depends on other. ठीक? Like अभी हमने एंट्री की थी गेट से. गेट से शुरू की थी ना, तो हमने मटेरियल को गेट से इनपुट लिया और उससे हमने पूरा प्रोसेस देखा. बट क्या एग्जैक्टली गेट पे मटेरियल डिस्पैच इज सम अदर एस्पेक्ट, वो किसी और इंडस्ट्री का आउटपुट एस्पेक्ट है. ठीक है, सर वो आंटी परचेज डिपार्टमेंट बहुत पास आ गए आप. क्वेश्चन डिमांड, परचेज नहीं, डिमांड. मुझे जरूरत है. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम गेट एंट्री, where should I actually start? What should be my standard? अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की. अभी तो हमने रिकॉर्ड्स देखे, कहां कहां क्या क्या मेंटेन होता है.
but from where exactly